Another major concern for India, which is the interconnected river system through which water from Nepal can eventually enter the Indian states. In Nepal, the Bhotekoshi River is linked to the Trishuli river system. The Trishuli meets the Kali Gandaki at Devghat, forming the Narayani River, which flows into India and is known there as the Gandak. This interconnected river system means that a sudden surge of water in the upper reaches of Nepal could directly affect water levels downstream in India's Gandak river system. The immediate concern is the possibility of a sharp rise in the Gandak and the Narayani rivers, particularly in border areas of Bihar and Uttar Pradesh. Authorities in 9 districts of Bihar and 7 districts of Uttar Pradesh have stepped up preparedness amid fears of rising river levels. 9 districts in Bihar have been placed on high alert. In Bihar's West Champaran, a sudden rise in the Gandak River has prompted authorities to open 36 gates of the Gandak barrage. As a precautionary measure, residents living along the river banks are also being evacuated. Uttarakhand has intensified monitoring in border district Champawat as well. The SDRF's Tanakpur post has been placed on high alert amid concerns over the Sharda River. The situation is being closely monitored at the highest levels, with Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah keeping a close watch on these developments. And just on Wednesday, Home Minister spoke with Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath over the possibility of the rising river levels in the 2 states, describing the devastation caused by floods in Nepal as extremely heartbreaking. Amit Shah said he discussed both the disaster situation and the preparedness with the two chief ministers. Amid the possibility of rising water levels in the rivers flowing from Nepal and the interconnected river systems, Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary also held an emergency meeting with senior officials to assess the situation and review preparedness measures. Authorities have been put on alert in the vulnerable areas, while officials are closely monitoring developments and coordinating relief and evacuation efforts. खतरा तो अभी तक तो जो स्थिति है अब समान हो रहा है। इंद्र भगवान की कृपा रहेगी तो एकदम सामान्य रहेगा। विभीषिका के मद्देनजर सरकार की तैयारी बेहद आवश्यक है। एनडीआरएफ कितनी प्रिपेयर्ड है, क्योंकि एक तरह से जब नेपाल में इस तरह की आपदा आती है तो आपको थोड़ा वक्त मिलता है तैयारियों का। सरकार की परीक्षा भी होती है और मैं समझता हूं जान माल की हर तरह की सुरक्षा और जो हमारे भारतीय स्ट्रैंडेड है उसके लिए उच्च पहलकदमी की जाए। नेपाल क्षेत्र के अंतर्गत चीन और तिब्बत बॉर्डर पर रसुआ जिले एक पड़ता है, वहाँ भारी ओलावृष्टि अतिवृष्टि होने के से ग्लेशियर जल भ्रष्ट हुई, जिससे नारायणी नदी एवं कोसी नदी में ये था कि इस नदियों के माध्यम से पानी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा, बिहार में जाएगा, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा। तो रात भर अधिकारी लगे रहे। उधर नारायणी होती है और अपने यहाँ आकर गंडक हो जाती है, जो महाराजगंज और कुशीनगर जिले और प्रभावित करती है। तो अंदाज था कि लगभग लोग रात में अंदाज लगाए थे कि 10 बजे रात तक 3 लाख क्यूसिक पानी हमारे यहाँ से गुजरेगा, लेकिन 10 बजे तक पानी नहीं गुजरा। लगभग 12 बजे रात को वो पानी 3 लाख के बजाय 1.5 लाख पानी हमारी जो नारायणी है, मतलब जो गंडक हमारा है, नारायणी उधर से आती है और फिर गंडक यहाँ नाम हो जाता है। तो उस नदी से लगभग 1.5 लाख क्यूसिक पानी गुजरा है और वर्तमान में अभी पानी निकल गया, कुशीनगर होते हुए पानी आगे को निकल गया है और आसानी से अधिकारी रात भर जगे रहे 24 घंटा और शासन प्रशासन में लगा रहा, जिसके कारण पानी आराम से निकल गया। नेपाल के रसुआ जिले में बुधवार को जबरदस्त बाढ़ आई, भयानक त्रासदी हुई, जिसका असर अब भारत पर भी पड़ सकता है। गंडक नदी भारत के लिए इस वक्त संकट बन सकती है और यही वजह है कि जो बगहा गंडक है वहां पर जो गंडक के गेट हैं बैराज के, वो 3 बार खोले गए हैं। इसके अलावा जो 36 गेट हैं उसको खोल दिया गया, जिसकी वजह से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एनडीआरएफ लगातार चीजों को मॉनिटर कर रहा है। सीडब्ल्यूसी नजर बनाए हुए है कि कितने मीटर पानी बढ़ रहा है और इसी वजह से एनडीआरएफ ने बिहार में 9 जगहों पर अपनी टीमों को तैनात किया है। 4 टीमें अभी भी स्टैंड बाई पर है। आप देख सकते हैं कि ये नेपाल का एरिया है, यहां से जो गंडक नदी है वो बहते हुए बिहार में
में वेस्ट चंपारण की तरफ से आती है और इसीलिए एक टीम जो है वो वेस्ट चंपारण में एनडीआरएफ ने तैनात की है, दूसरी बेतिया में तैनात की है। इसके अलावा ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में भी तैनात की गई है। इसके अलावा सुपौल के आसपास भी एक टीम को एनडीआरएफ ने तैनात किया। भागलपुर में भी अभी एक टीम यहां पर तैनात की गई और देखेंगे कि जो ये पटना के आसपास का इलाका है, इसके अलावा जो वैशाली का इलाका है, वैशाली में भी बताया जा रहा है कि जो बाढ़ का असर अब देखने को मिल रहा है। लगभग गंडक की और गंगा की 3 मीटर जो उसकी वो है बढ़ चुका है जलस्तर।